Good morning, everyone. Hope you are doing well in the lockdown period. Okay, so now I am with my next video on the female reproductive system, and in this, I'll be discussing you about the fertilization, implantation, embryogenesis, development, and parturition. Okay, so first of all, we are just going to discuss here about the structure of the male and the female gamete. In case of human being, that is the female gamete is called as the ovum. So when we look at the structure of the male and the female gamete, we find that the female gamete or ovum is larger in size than that of the male. We can just simply find here. And now we are just looking at the structure of this ovum or the secondary oocyte. Ovum is actually, this is the ovum or the secondary oocyte. So what we find that it has a very prominent large nucleus. The nucleus of the ovum or the secondary oocyte, it remains arrested in meiosis II, and that meiosis II can only get overcome when the sperm penetrates the egg membrane. Clear? Now its cytoplasmic mass, it is called ooplasm. This is the cytoplasmic mass that called ooplasm, and this ooplasm shows the presence of a structure called as the cortical granule, which is mucopolysaccharide. Actually mucopolysaccharide, this is the cortical granule. The egg is covered by a membrane which is called egg membrane or plasma membrane. Outside this membrane, it also has one membrane called as the zona pellucida, which is glycoproteinous structure. Zona pellucida, glycoproteinous structure. In between the egg membrane and zona pellucida, there is also one space. This is the space. This is called perivitelline space. Clear? And outside this zona pellucida, they have radially elongated cell, covering of radially elongated cell. This is called corona radiata. So this is all about the structure of the egg, clear, or the ovum. So now just look at the structure of the sperm. In case of a sperm, we find that it has structure, first part called as the head. This head shows the presence of acrosome just above the head. Acrosome is present. This acrosome contains large number of hydrolytic enzyme, collectively called sperm lysine, and these are produced by the Golgi body. Clear? Then the head shows the presence of nucleus. This nucleus plays important role during fertilization. It has all the hereditary information, and very little amount of cytoplasm is present over here. Now in the neck region, here we find the presence of pair of centriole. In case of ooplasm of the ovum, there is no any centriole, that must be kept in mind. यहाँ पे कोई भी centriole नहीं होता है. जो जायगोट का डिवीज़न के लिए जो सेंट्रियोल चाहिए होता है वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो प्रेजेंट है नेक रीजन में, इट पार्टिसिपेट्स ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन. Now just below this neck region, we find that it is the middle piece. This middle piece shows the presence of large number of mitochondria. Clear? And then there is a tail region. So that tail provides the motility. Okay. So the next slide, now we are just going to discuss about the steps of fertilization. Now the fertilization means fusion of male and female gamete. In case of human being, it occurs in the ampullary isthmic junction only when both sperm and ovum reaches simultaneously. Clear? Because both sperm and ovum takes time to reach in the ampullary isthmic junction, and they have limited period of viability. So when they just reach simultaneously, then only it results in fertilization. So that is ovum. The first stage is release of ovum. We know well that the ovum is released only on the 14th day of menstrual cycle, where the level of LH and FSH is very high during LH surge. But it may vary from person to person, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है. So at that time when the insemination occurs and the sperm is available, then only the fertilization can occur. So now during insemination, about 300 millions of the sperms are being produced, but
this sperm, they can live in the female reproductive tract for about 1 to 3 days, but they can fertilize only in the first 12 to 24 hours. Clear? After insemination, it can just within 12 to 24 hours only it can fertilize. So in the same way, the female secondary oocyte, it also survives for about 72 hours, but it can be fertilized in the first 24 hours. It means that both the male and the female gametes are viable only for the first 24 hours. Okay. So now what happens that when the ovum is when the sperm is inseminated and it comes in the genital tract of the female, then the first step that occurs is called as capacitation. Now what is capacitation? During capacitation, actually capacitation occurs in the female genital tract in the uterus, where what happens that different type of inhibitory protein, cholesterol, these all are present over the all around the sperm. They are just simply being removed by the genital by the uterine endometrium of the female, and it takes about 6 to 7 hours to remove this coatings, inhibitory coatings. So in that way, finally the sperm now becomes more active and more motile. Not only this, but actually what happens that the semen also contains a hormone called prostaglandins. So that also result in contraction of the uterine wall, and because of that it also favors the forward movement of the sperm. So in that way what happens that the uterine wall not only help in capacitation, but they also increases the motility of the sperm. Okay, so after that the next step is acrosomal reaction. Next step we just simply here acrosomal reaction. Capacitation we have done, simultaneously the sperm and the ovum they reaches to the ampullary isthmic junction. Now the next step is acrosomal reaction. So now what is this acrosomal reaction? So that we will just simply find. Here what happens that as we have studied over here that the just above the sperm head the acrosome is present, and that acrosome contains different type of sperm lysine hydrolytic enzyme that contains these hyaluronidase, corona penetrating enzyme, and zona lysine. Now just look what happens. As the simultaneously sperm and ovum had reached to the ampullary isthmic junction, then first of all what happens that the sperm starts, it just simply starts to degrade this, that is the hyaluronic acid present in between these corona radiata. So that is just simply being degraded by the enzyme hyaluronidase, बिकॉज हाइलुरोनिक एसिड के जस्ट ऑपोजिट है हाइलुरोनाइडेज. वो क्या करता है, जो सीमेंटिंग मटेरियल है इसको ये डिग्रेड करता है, और उसके बाद जो है स्पर्म बाइंड्स टू द जोना पेलुसिडा. वहाँ पर जब वो पहुँचता है तो वहाँ पर भी उसको भी लाइज करने के लिए इसके पास जोना लाइसिन है, लेकिन वो जब वहाँ पहुँचता है तो एक्सोसाइटोसिस होता है. जो एक्रोजोम का मेम्ब्रेन है ये फ्यूज कर जाता है स्पर्म हेड के मेम्ब्रेन से और वो रिलीज कर देता है एंजाइम्स को. सो दैट्स व्हाई कंटेंट्स ऑफ द एक्रोजोम आर रिलीज्ड बाय एक्सोसाइटोसिस, और इसी को हम कहते हैं एक्रोजोमल रिएक्शन. और बिकॉज ऑफ दैट कोरोना रेडियाटा को डिग्रेड करता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जोना पेलिसिडा को डिग्रेड करता है जोना लाइसिन. क्लियर. और इस तरीके से फाइनली व्हाट हैपेंस दैट द स्पर्म हेड जो है दैट पेनिट्रेट्स, it penetrates the egg membrane. Clear. So in that way penetration of the egg membrane occurs. Clear. So now what happens, जैसे ही penetration होता है then it results in depolarization of the egg membrane. egg membrane depolarized हो जाता है. आपने पहले पढ़ा हुआ है कि depolarization में क्या होता है कि permeability of the egg membrane just get changed, और जैसे ही चेंज होता है तो दूसरा स्पर्म वहाँ पे पेनिट्रेट नहीं कर पाता. सो दैट इज कॉल्ड एज फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी. तुरंत में उसने दूसरे स्पर्म को फ्यूज करने से रोक दिया. सो इट फेवर्स मोनोस्पर्मी. क्लियर. एंड प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी. और आफ्टर दैट जैसे ही एक बार डिपोलराइजेशन हो गया तो फिर नेक्स्ट स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन. अब देखेंगे आप नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या है
कॉर्टिकल रिएक्शन क्या है। सो यहाँ पे कॉर्टिकल रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि ऊप्लाज्म में जो है, ऊप्लाज्म के अंदर में एक केमिकल प्रेजेंट है म्यूकोपॉलीसैकेराइड का, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल। वो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सारे आपके कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, जैसे ही एक मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन हुआ उसके बाद ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो हैं, ये देखिए यहाँ पर आकर के एक मेम्ब्रेन से फ्यूज़ कर गया। एक मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करने के बाद एक मेम्ब्रेन काफ़ी थिक हो जाता है। क्लियर, सिर्फ ये थिक ही नहीं होता बल्कि जो पेरीवाइटेलाइन स्पेस आपने पढ़ा था कि जोना पेलुसिडा और एक मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस है, इसको कहते हैं पेरीवाइटेलाइन स्पेस। तो एक कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो हैं दे जस्ट releases their enzyme in the perivitelline space. So because of that ये आपका एक membrane perivitelline space ये सारे के सारे काफ़ी thick हो जाते हैं, and because of that अब दूसरा sperm जो है वो बिल्कुल ही इंटर नहीं कर सकता। क्लियर, सो दिस इज कॉल्ड एज अ कॉर्टिकल रिएक्शन। ये है कॉर्टिकल रिएक्शन। क्लियर, सो इन दैट वे व्हाट हैपेंस, इट इज द श्योर ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉर्टिकल रिएक्शन इज द श्योर ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। और एक बार जब कॉर्टिकल रिएक्शन हो गया बिल्कुल ही दूसरा स्पर्म इंटर नहीं कर पाएगा, और चूंकि पहला स्पर्म जो है पेनिट्रेट कर चुका है ऑलरेडी एग मेम्ब्रेन को, इट रिजल्ट्स इन एक्टिवेशन ऑफ द ओवम। ओवम का न्यूक्लियस जो आपका मियोसिस 2 के मेटाफेज में था, अब वो क्या करता है, वो कंटिन्यू कर लेता है मियोसिस 2, और नाउ इट प्रोड्यूसेस ooted एंड सेकेंड पोलर बॉडी। Clear? Now second polar body and ooted has been formed. So finally the male and the female pronuclei, they just fuse with each other and it result in formation of zygote. Clear? So in that way fertilization is completed. So here we can just simply find the structure. जो फर्टिलाइजेशन का जो स्टेज है वही चीज़ यहाँ पर दिखला रहा है, मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई फ्यूज कर रहा है, दिस द जाइगोट। नाउ जस्ट लुक द साइज ऑफ द जाइगोट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द सेकेंडरी oocyte, जितना बड़ा सेकेंडरी oocyte है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जाइगोट जो है इट इज स्टिल जस्ट सराउंडेड बाय जोना पेलुसिडा, अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जोना पेलुसिडा जाइगोट में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे बात यह है कि जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद ऐसा नहीं है कि जाइगोट विल अंडरगो रेस्टिंग पीरियड, अनलाइक द प्लांट जहाँ हमने देखा कि वहाँ पे जाइगोट अंडरगोज रेस्टिंग पीरियड, यहाँ पे कोई रेस्टिंग पीरियड नहीं होता, ये स्टार्ट कर देता है डिवीज़न। Just after 30 hours after fertilization the zygote starts dividing, और जो डिवीज़न होता है इसको हम लोग कहते हैं क्लीवेज डिवीज़न। जाइगोट डिवाइड्स बाय अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ डिवीज़न विच इज़ कॉल्ड एज क्लीवेज। इट इज़ माइटोटिक इन नेचर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है कि इंटरफेस काफ़ी शॉर्ट होता है। दूसरी बात यह है कि इंटरफेज में ग्रोथ फेज एब्सेंट रहता है। G1 और G2 जिसको हम लोग ग्रोथ फेज कहते हैं वो एब्सेंट रहता है, एस फेज प्रेजेंट रहता है। एस फेज की वजह से क्या है, डीएनए का डुप्लीकेशन तो हो जाता है लेकिन सेल का साइज नहीं इंक्रीज करता। क्लियर, तो सेल का साइज इंक्रीज नहीं करता, तो इसलिए आफ्टर एवरी डिवीजन दो जो डॉटर सेल हैं, आप यहाँ देखिए जाइगोट का ये साइज है और 2 सेल्ड स्टेज में आपको दिख रहा है कि 2 डॉटर सेल है, 2 ब्लास्टोमियर्स कहते हैं यहाँ पे डॉटर सेल्स को। जो ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन हुआ, दिस ब्लास्टोमियर इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द जाइगोट। फिर आपको 4 सेल्ड स्टेज में और भी छोटा दिख रहा है, 8 सेल में और भी छोटा दिख रहा है, 16 सेल में और भी छोटा दिख रहा है। तो ये डिवीज़न जो होता जाता है, यहाँ पर साइज डॉटर सेल का छोटा होता है क्योंकि कोई ग्रोथ फेज नहीं है, डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है। तो ये कब तक ऐसे छोटा होता जाएगा, तब तक जब तक कि किसी भी पार्टिकुलर स्पीसीज के लिए जो सेल का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है, जो उसके सोमैटिक सेल का जो साइज है, जब तक वो मेंटेन नहीं हो जाता है तब तक वो इस तरीके से विदाउट ग्रोथ फेज वो डिवाइड करता रहता है। और एक बार जब वो अटेन कर लेता है साइज को, उसके बाद से फिर जो नॉर्मल माइटोटिक डिवीज़न है उसी से वो डिवाइड करता है। क्लियर, तो मैंने आपको बताया कि जस्ट 30 आवर्स के बाद डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये डॉटर सेल्स हैं, इनको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो 30 आवर्स के बाद 2 सेल्ड स्टेज बना, फिर 40 आवर्स के बाद बनता है। 8 सेल्ड स्टेज होते होते लगभग 3 डेज लग जाता है। 4 डेज होते होते ये 16 सेल स्टेज में आ जाता है। यहाँ देखिए 8 सेल स्टेज जो है, यहाँ पर ये सेल्स जो बने हैं वो अनकॉम्पैक्टेड हैं।
ऐसे बिखरे हुए हैं, फाइनली वो क्या होता है कि कॉम्पैक्ट हो जाता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है और इसको हम कहते हैं 16 सेल स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोरूला। इट इज कॉल्ड मोरूला या मलबेरी स्टेज भी कहते हैं। क्लियर। तो जनरली क्या है कि मोरूला जो है 8 to 16 सेल स्टेज होता है, लेकिन 16 to 32 सेल भी हो सकता है। और उसके बाद क्या होता है कि फर्दर नेक्स्ट स्टेज आता है, सो कहते हैं ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट। ये स्टेज जो है इट मे बी फ्रॉम 16 to 32 और 32 to 64 सेल का भी ये हो सकता है। क्लियर। एंड दिस इज द ब्लास्टुला स्टेज, जो कि आपका ब्लास्टोसिस्ट जो है इसी का इम्प्लांटेशन होता है। अब यहाँ पर फर्दर क्या है, फर्दर यहाँ पे कॉम्पैक्शन होता है और रीअरेंजमेंट होता है। जो सेल यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वो नाउ दे जस्ट गेट डिफ्रेंशिएटेड, वो जा करके एक आउटर लेयर बना देता है जिसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्लियर। ये आउटर लेयर जो है इसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। नेक्स्ट डायग्राम में भी आपको दिखलाएंगे हम। और उसके बाद क्या है कि बाकी के जो सेल हैं वो एक साइड में आके कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो जाते हैं। क्लियर। और इनको हम कहते हैं इनर सेल मास। दिस इज कॉल्ड एज अ इनर सेल मास। और ये इनर सेल मास जो है ये टोटीपोटेंट है, मतलब इट हैज़ कैपेसिटी ऑफ डिवीज़न। यही डिवाइड करके हमारे बॉडी में जो 3 जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, उसको बनाता है और फाइनली उसे टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। क्लियर। कॉम्पैक्शन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी। ये कैविटी है ब्लास्टोसील। दिस ब्लास्टोसील रिमेन्स फिल्ड विद द फ्लूइड फ्रॉम द यूट्रस। यूट्रस से यहाँ पे फ्लूइड जो है आके फिल्ड हो जाता है, सो दैट इज इट इज जस्ट रिमेन फिल्ड विद द फ्लूइड। ओके, आगे देखिए। और ये ब्लास्टुला बनते बनते 5 to 6 days होते आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये कंप्लीट होता है। क्लियर। सो नाउ हियर द सेम थिंग जो मैंने आपको बताया। और दूसरी बात आपको यहाँ पर डायग्राम से समझ में आ रहा है कि यहाँ डिवीज़न होता जा रहा है और ये सारा मूवमेंट भी होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह में डिवाइड करके वहीं पे प्रेजेंट है। यहाँ देखिए डे 2 है, डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे आपका जो है वो 2 सेल्ड स्टेज बना, 4 सेल्ड स्टेज बना। क्लियर। ये 4 सेल्ड स्टेज बन रहा है। फिर अनकॉम्पैक्टेड यहाँ पर 8 सेल्ड मोरूला बना, देन आपका कॉम्पैक्ट हो गया मोरूला, देन फाइनली व्हाट हैपन, ब्लास्टोसिस्ट का ब्लास्टुला का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हुआ। बाय द एंड ऑफ 6 डे ये आपका कंप्लीट हो गया लेट ब्लास्टुला। और फिर क्या होता है 7 to 9 3 days लग जाता है लगभग इस ब्लास्टुला को इम्प्लांट होने में। इम्प्लांट होने का मतलब प्रॉपरली प्लेस पे सेटल्ड होने में। नाउ दिस इम्प्लांटेशन के लिए जोना पेलुसिडा प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको अभी तक पता होना चाहिए कि ब्लास्टुला स्टेज तक जोना पेलुसिडा प्रेजेंट है। जोना पेलुसिडा जो है हेल्प करता है इसको ब्लास्टुला को टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज द राइट साइड फॉर इम्प्लांटेशन। कहीं गलत जगह पे इम्प्लांटेशन, ये सर्वाइकल रीजन है, यहाँ पे ना इम्प्लांटेशन हो जाए, कहीं रॉन्ग प्लेस पे ना हो, इसके लिए वो हेल्प करता है। क्लियर। और जब ब्लास्टुला यहाँ पर ये पहुंचा राइट प्लेस पे, देन व्हाट हैपेंस दैट इट ऑल्सो रिलीजेज, इसका जो आउटर लेयर है उसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, रिलीजेज सम लाइटिक एंजाइम, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा यहाँ पर एक कैविटी जैसा एंडोमेट्रियम में बना देता है। इट जस्ट क्रिएट्स अ लिटिल स्मॉल कैविटी, ठीक है, लाइटिक एंजाइम की वजह से, और उसमें जा कर के ये सेटल्ड हो जाता है। क्लियर। तो आगे हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर वही सेम चीज़ यहाँ पे किस किस दिन क्या होता है उसी चीज़ को दिखलाया हुआ है कि आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, डे 2 से क्लीवेज स्टार्ट हो गया, डे 3 में कॉम्पैक्शन हुआ, मोरूला स्टेज जो था उसका कॉम्पैक्शन हो रहा है। क्लियर। 4th डे में आपका डिफ्रेंसिएशन होने लगा। डिफ्रेंसिएशन मतलब आउटर ट्रोफोब्लास्ट लेयर बन गया और इनर सेल मास बनना स्टार्ट हो गया, मतलब ब्लास्टुला के साइड में ये ब्लास्टुला बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ देखिए ये स्टेज जो है यहाँ पे आपका ब्लास्टुला दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कि आउटर आपका ट्रोफोब्लास्ट लेयर है। क्लियर। और ये इनर सेल मास है। जिस साइड में इनर सेल मास होता है उसको हम कहते हैं एनिमल पोल। इट इज़ द एनिमल पोल। और उसके ऑपोजिट ये जो पार्ट है इसको कहेंगे वेजिटल पोल। ठीक है। जिस साइड में इनर सेल मास है वो है इसका पोलरिटी होता है ब्लास्टुला में, तो जिस साइड में इनर सेल मास है वो एनिमल पोल और ठीक उसका ऑपोजिट को हम कहते हैं वेजिटल पोल। क्लियर। सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, नाउ द इम्प्लांटेशन हैज अकर्ड। यहाँ देखिए इम्प्लांटेशन जब स्टार्ट होता है तब जाकर के जोना पेलुसिडा जो है नाउ इट स्टार्ट्स रैप्चरिंग। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा डिफॉर्म्ड हो रहा है,
डिफॉर्म्ड हो रहा है. नाउ इट स्टार्ट्स that is degenerating. Clear? And then after that what happens, next stage में अब क्या होता है, that the cell mass differentiation, यहाँ पर आपका जो है वो एक्टोडर्म एंडोडर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. वो भी आपको हम दिखला रहे हैं किस तरीके से स्टार्ट होता है, फिर हम लोग इस पे आएंगे. देखिए अब क्या है, यहाँ जो इनर सेल मास है ये आपका डायग्राम है ब्लास्टुला का. क्लियर? दिस अ ट्रोफोब्लास्ट लेयर, जो बोला मैंने आपको कि आउटर लेयर में ट्रोफोब्लास्ट है और ये इनर सेल मास है जो कि टोटीपोटेंट है, जिसमें कैपेसिटी है डिवीजन का. क्लियर? सो नाउ व्हाट हैपेंस, अब चेंज आता है इसमें कि नाउ जस्ट सिंपली जो इनर सेल मास था इसमें कुछ सेल्स जो हैं दे जस्ट बिकम लॉन्ग कॉल्यूमिनर एंड दिस इज कॉल्ड एपीब्लास्ट. क्लियर? और जो लोअर सेल है वो जस्ट फ्लैट आपका जो है इलोंगेटेड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट. क्लियर? सो यहाँ पर इनर सेल मास में डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हुआ. डन. एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, द नेक्स्ट स्टेज में दैट व्हाट हैपेंस कि ये जो आपका ट्रोफोब्लास्ट सेल था, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल ये फिर डिवाइड करके एक अंदर में भी आपका जो है एपीब्लास्ट सेल के अंदर में भी एक जो है यहाँ पर ये देखिए लिखा एम्नियोजेनिक सेल. ये एम्नियोजेनिक सेल जो है ये एक लेयर बनाता है ट्रोफोब्लास्ट अपने अंदर में, जिसको हम कहते हैं एम्नियोजेनिक सेल. और उसके बाद क्या है कि एम्नियोजेनिक सेल और एपीब्लास्ट के बीच में एक कैविटी का बनना स्टार्ट होता है, जिस कैविटी को ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका कैविटी का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और ये कैविटी को हम कहते हैं एमनियोटिक कैविटी. एमनियोटिक कैविटी बन रहा है. ये एमनियोटिक कैविटी धीरे धीरे करके इनलार्ज होता गया. डन. एंड देन फाइनली व्हाट हैपेंस कि ये जो आपका एपीब्लास्ट जो है वो फाइनली बना देता है, ये आपका जो लॉन्ग कॉल्यूमनर सेल था ये एपीब्लास्ट जो है ये फाइनली बनाता है एक्टोडर्म बनाता है. क्लियर? और ये जो आपका हाइपोब्लास्ट सेल था, दिस इज अ हाइपोब्लास्ट, ये हाइपोब्लास्ट जो है वो ग्रो करके पूरी तरह से ये जो ब्लास्टोसील था इसको कवर कर लेता है और अब ये एक नया कैविटी बना देता है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी योक सैक. सो इन दिस स्टेज यू फाइंड कि यहाँ पे दो कैविटी प्रेजेंट है. ऊपर में आपका जो है वो एमनियोटिक कैविटी है और नीचे में प्राइमरी योक सैक है. क्लियर? टू कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पर आपका जो है एपीब्लास्ट बना दिया है एक्टोडर्म और हाइपोब्लास्ट जो था ये बना दिया एंडोडर्म. सो ये टू सेल्ड स्टेज बन गया. यहाँ पे टू सेल्ड स्टेज है. उसके अलावा इसमें दो कैविटी है, एमनियोटिक कैविटी है ऊपर में और नीचे में क्या है, योक सैक है. क्लियर? सो नाउ जस्ट लुक हियर, द सेम थिंग यहाँ पर आपको जो मैंने डिस्कस किया, यहाँ पर देखिए दो आपका जो है टू कैविटीज़, यहाँ पे एमनियोटिक कैविटी बन गया है और यहाँ पे योक सैक का फॉर्मेशन हो गया, योक सैक. क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंस कि ये जो दोनों एक्टोडर्म और एंडोडर्म जो बना था उनके बीच में एक लेयर प्रिमिटिव स्ट्रिक कहते हैं. उनके बीच में देखिए यहाँ पे दिख रहा है प्रिमिटिव स्ट्रिक. ये इनके बीच में अब इस तरीके से मीजोडर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. क्लियर? इट स्टार्ट दोनों के बीच में मीजोडर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. डन. एंड देन व्हाट हैपेंस दैट दिस इज द, ये जो आपका ट्रोफोब्लास्ट लेयर प्रेजेंट था, ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर क्या करता है, नाउ दिस ट्रोफोब्लास्ट लेयर, आउटर ट्रोफोब्लास्ट लेयर, इट जस्ट सिंपली ग्रोज टू फॉर्म फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एंड इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कॉरियन. दिस इज कॉल्ड एज कॉरियन, CHORION. ये है कॉरियन. कॉरियन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा. क्लियर? ये देखिए आपका डेज दिखला रहा है कि किस डेज में इसका फॉर्मेशन हो रहा है. यहाँ पर आप देखिए डिफ्रेंसिएशन जो है, सेल मास डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हुआ है आपका डे 9 में. क्लियर? यहाँ पर आपका जो दोनों कैविटी है बाय द एंड ऑफ 12 डेज ये दोनों ही बन गया. देन व्हाट यू फाइंड, यहाँ फिर आप देखिए कि बाय द डे 12 अगेन यू फाइंड कि मीजोडर्म का भी फॉर्मेशन हो गया. इट ऑल्सो रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्म. देन यू फाइंड दैट हियर इन केस ऑफ by the end of that is
18 डेज हियर व्हाट हैपेंस कि आपका कॉरियन का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, मतलब ये कॉरियन जो है, कॉरियन के बनने का मतलब है कि प्लासेंटा का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। और ये जो विलाई है, कॉरियोनिक विलाई, ये जाकर के मदर के एंडोमेट्रियम में बेसिडुआ लेयर है, वहाँ तक वो जाकर के जो है वो डेसिडुआ बेसिलिस लेयर तक वो पहुँच जाता है, जहाँ पे कि एंडोमेट्रियम में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। तो ये दोनों ही बिल्कुल इंटरडिजिटेड हो जाते हैं, इसलिए हमारा जो प्लासेंटा है ह्यूमन का, उसको हम कहते हैं हीमोकॉरियल, क्योंकि मदर के ब्लड साइड और ये कॉरियन आया आपका एम्ब्रियो के साइड से, तो दोनों के इंटरडिजिटेशन से बनता है आपका प्लासेंटा। सो इट इज कॉल्ड हीमोकॉरियल प्लासेंटा। अब देखिए कब बन रहा है, डे 18, क्लियर। तो डे 18 में जब बन रहा है तो मतलब जब प्रेगनेंसी होती है तो विद इन 18 डेज में ये इसका फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ही ये बनता है कॉरियोनिक विलाई, देन इट स्टार्ट सिक्रीटिंग हार्मोन कॉल्ड HCG, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। इसका मतलब देखिए फीमेल का क्या है कि 14 डेज में ओव्यूलेशन हुआ, अगले 14 डेज में उसका मेंस्ट्रुएशन आना चाहिए, मेंस्ट्रुएशन नहीं आया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फर्टिलाइजेशन हो चुका है, इम्प्लांटेशन हो चुका है। तो जैसे ही मेंस्ट्रुएशन नहीं आया, फीमेल जब जाती है यूरिन टेस्ट के लिए, तो उस समय जो है उसके यूरिन में मिलता है HCG, क्लियर। और समझ में आता है कि फीमेल जो है सी इज ग्रेविड और द प्रेग्नेंट, क्लियर। सो ये HCG जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो मतलब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट कर जाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट करने की वजह से प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पर ये क्या करता है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो प्लासेंटा का फॉर्मेशन जैसे ही स्टार्ट हुआ, HCG का सिक्रेशन हुआ। ये HCG क्या करता है कि इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्टेरोन, ये फंक्शन कैरी कर लेता है कॉर्पस ल्यूटियम का। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस कर रहा था प्रोजेस्टेरोन, अब ये HCG जो है दैट टेक्स द फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, और वो कंटिन्यू रखता है प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन, जिसकी वजह से क्या है कि एंडोमेट्रियम जो है वो ठीक रहता है। अगर वो थिकनेस नहीं रहेगा तो इट विल रिजल्ट इन एबॉर्शन, क्लियर। सो दैट्स व्हाई HCG एक्ट्स एज द कॉर्पस ल्यूटियम एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग दैट इज प्रोजेस्टेरोन। लेकिन 3 मंथ्स होते होते कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो मेंटेन्ड है, उसको मेंटेन करके रखा है जो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कर रहा है। 3 मंथ्स तक तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है। 3 मंथ्स के बाद क्या है कि कॉर्पस ल्यूटियम का जो काम है वो अब डायरेक्टली प्लासेंटा खुद ही प्रोड्यूस करने लगता है प्रोजेस्टेरोन। 3 मंथ्स तक HCG ने कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखा। 3 मंथ्स के बाद क्या है कि प्लासेंटा स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्टेरोन, क्लियर। सो इन दैट वे दिस इज ऑल अबाउट योर structure. So now I will just show you the formation of the extra embryonic membrane. Now just look here, there are different type of extra embryonic membrane that are just being formed. तो हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर कि कॉरियन जो है वो ट्रोफोब्लास्ट ने बनाया, एमनियन ने भी किसने बनाया, आउटर ट्रोफोब्लास्ट एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये एमनियन क्या है, एमनियन इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट अराउंड दिस फीटस के अराउंड में जो है ये प्रेजेंट रहता है, क्लियर। और ये इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एमनियोटिक फ्लूइड दैट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर फॉर द फीटस। इसमें फीटस जो है वो फ्लोट कर सकता है, इससे एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी होता है। इट ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द मॉइस्चर कॉन्टेंट ऑफ द टू द फीटस, क्लियर। सो इस तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जब एमनियोसेंटेसिस किया जाता है तो इसी एमनियोटिक फ्लूइड को जो है वो निकाला जाता है। चूँकि इसमें बेबी फ्लोट करता रहता है, इसलिए इसमें जो फीटस है, एम्ब्रियो है, उसके सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो उस सेल्स के क्रोमोसोम को हम स्टडी कर लेते हैं। सो दैट इज एमनियोसेंटेसिस, क्लियर। नेक्स्ट आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है इसको हम कहते हैं योक सैक। ये योक सैक आपने देखा था, धीरे धीरे जो है जो आपने देखा कि इनर इट इज जस्ट सिंपली बीइंग फॉर्म्ड बाय द एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, क्लियर। जो हाइपोब्लास्ट सेल था उसने इसको बनाया था,
क्लियर। तो ये धीरे धीरे इसका साइज जो है वो छोटा होता जाता है। और ह्यूमन बींग में योग सैक का कोई खास काम नहीं है, जो अदर एनिमल्स हैं। हमारा एक चूंकि है एलीसीथल, यहाँ पे योग उतना प्रेजेंट नहीं होता। योग का काम होता है टू स्टोर द न्यूट्रिशन, लेकिन ह्यूमन में योग सैक का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लासेंटा जो है वो ऑलरेडी न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर योग सैक जो है इट ओनली हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल्स। जब तक कि लीवर जो है ये फंक्शन कैरी ऑन नहीं कर लेता, तब तक योग सैक जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है एलेंटोइस, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, आल्सो मेड बाय द ट्रोफोब्लास्ट सेल। सो दैट इज दिस एलेंटोइस फाइनली रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्ट करता है एम्ब्रियो को विद दैट ऑफ द मदर, दोनों से कनेक्ट करता है। और इस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर में क्या होता है? इट कॉन्टेन्स 2 अम्बिलिकल आर्टरी एंड 1 अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल आर्टरी जो है दैट जस्ट सिंपली टेक्स आउट डीऑक्सीनेटेड ब्लड, एक्सचेंज में हेल्प करता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो एम्ब्रियो से लेकर के मदर के साइड में लेकर के जाता है, और अम्बिलिकल वेन जो है वो मदर के साइड से ऑक्सीनेटेड ब्लड को पहुंचाता है फीटस तक, एम्ब्रियो तक। क्लियर। सो दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। उसके अलावा एलेंटोइस जो है इट ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। क्लियर। सो दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। So next one is the development, gestation and development. The gestation period का मतलब क्या है? जो developmental period है जिसमें कि एक embryo जो है that get converted into the young one. So that is gestation period in case of female. In case of human, it is of about 40 weeks, but it may be plus minus 40 weeks और 270 days हम इसको कहते हैं. So that is but plus minus 7 days. So this 40 weeks time period has been divided into 3 ट्राइस्टर्स. फर्स्ट 3 months जो होता है अप टू 13 week इसको कहते हैं फर्स्ट ट्राइस्टर. अप टू 26 week इज कॉल्ड अ सेकेंड ट्राइस्टर, एंड लास्ट वीक जो 40 weeks तक है इसको थर्ड ट्राइस्टर कहते हैं, 27 to 40 weeks तक. इसमें जो है वो डेवलपमेंट होता है. देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला जो डेवलपमेंट है दैट इज न्यूरुलेशन. जो आपका नोटोकॉर्ड जो है उसका फॉर्मेशन होता है, बट बाय द फर्स्ट मंथ जब एम्ब्रियो जो है वो 1 month का हो जाता है उस समय उसमें हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है. क्लियर. तो सबसे पहले जो डॉक्टर है वो फिजिशियन जो है वो पता करता है बाय गेटिंग द हार्ट बीट. हार्ट बीट जो है पता चलता है तो समझ में आता है कि प्रेगनेंसी हो गया है. क्लियर. सो बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ लिम्स स्टार्ट प्रोट्रूडिंग फ्रॉम दैट एम्ब्रियोनिक मास. और जैसे ही लिम्स का स्टार्ट हो जाता है प्रोट्रूजन, देन इट इज कॉल्ड एज द, अब इसको हम लोग फीटस कहते हैं. नाउ इट इज नो मोर कॉल्ड एज द एम्ब्रियो, नाउ इट इज कॉल्ड एज द फीटस. क्लियर. बाय द एंड ऑफ 3 months मतलब फर्स्ट ट्राइस्टर होते होते जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे बन जाते हैं. क्योंकि ये स्टेज जो है वो ग्रोथ फेज में है, डिफ्रेंसिएशन फेज में है, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल मना किया जाता है कि कोई भी आउटर मेडिसिन विदाउट फिजिशियन के सजेशन के नहीं लेना है, बिकॉज इट में अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द फीटस. क्लियर. सो हियर व्हाट हैपेंस, देयर इज अ ड्रग कॉल्ड एज द थैलिडोमाइड. उसके इनटेक की वजह से रेडियस अल्ना का फॉर्मेशन ही नहीं होता है और जस्ट जो ह्यूमरस के नीचे में ही लिम्स लग जाता है. इसको कहते हैं पेंगुइन्स लिम्ब. सो इन दैट वे सच टाइप ऑफ केमिकल दैट रिजल्ट इन अंडर डेवलपमेंट ऑफ द फीटस दे आर कॉल्ड टीरेटोजेन. So because of that, no any medicine is being prescribed to take during first 3 months. So 3 months में क्या है, पूरे बॉडी पार्ट्स बन गए. 4th month में जो है वो सिंपल ग्रोथ होता है, बॉडी साइज जो है वो बढ़ता है. 5th month में क्या है कि हेयर्स जो हैं दैट जस्ट स्टार्ट्स ग्रोइंग. हेड वगैरह के ऊपर में हेयर्स का फॉर्मेशन होता है. 6 months में जो है वो आई लैसेज, आई लिड्स वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है. और फीटस जो है वो बाय द एंड ऑफ 5th month वो मूव करने लगता है एमनियोटिक फ्लूइड में. वो लास्ट तक जो है 9 month तक उस तरीके से, मतलब 5th month में स्टार्ट हो जाता है हल्का हल्का और वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है. 7th month में क्या है कि इन केस ऑफ मेल द टेस्टिस डिसेंड्स इन द स्क्रोटम, एंड देन 7, 8, 9 months जो है सिंपली ग्रोथ फेज का ही है. क्लियर. सो इन दैट में जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके लास्ट 3 months, 7, 8, 9 month में काफ़ी वेट बढ़ जाता है.
बिकॉज वो इट रिजल्ट्स इन द ग्रोथ. ओके, सो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वी आर लास्ट टॉपिक, दैट इज द पार्चुरेशन. पार्चुरेशन मीन्स बर्थ ऑफ द young one. So ये when the complete gestation period has been completed, at that time what happens, that one information arises from the fully grown fetus as well as placenta, and this message passes to the pituitary, और इसको हम कहते हैं fetal ejection reflex. Clear? So that fetal ejection reflex, that is a message that passes from the fully grown fetus as well as from the placenta. This message goes to the pituitary. So in return of that message, fetal ejection reflex, the pituitary now produces the hormone. So posterior pituitary produces oxytocin, clear, which is called as the love hormone, and the anterior pituitary produces relaxin. Now you know the function of this oxytocin. Oxytocin क्या करता है? It results in vigorous uterine contraction. Vigorous uterine contraction, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा यूट्राइन वॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है. इट रिजल्ट्स इन लेबर पेन, और उसकी वजह से जो है वो एमनियोटिक मेम्ब्रेन रैप्चर कर जाता है. amniotic fluid जो है वो that just simply comes out. So in different stages parturition occurs. ये देखिए यहाँ पे the first stage जो है that is called as a dilation stage. So because of vigorous uterine contraction, the cervix that just get dilated, एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो है वो रैप्चर कर गया, एमनियोटिक फ्लूइड जो है डिस्चार्ज हो गया, सर्विक्स जो है, वेजाइनल कैनाल जो है, बोथ ऑफ देम जस्ट गेट डायलेटेड. इसमें आपका जो है रिलैक्सिन ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, जो कि प्यूबिक सिम्फाइसिस को भी रिलैक्स करता है और सर्वाइकल मसल्स को भी रिलैक्स करता है, वेजाइनल कैनाल को भी रिलैक्स करता है. सो इन द सेकेंड स्टेज व्हाट हैपेंस दैट द बेबी जस्ट starts emerging out. head जो है it is towards the vaginal और the cervical canal के साइड में होता है. क्लियर? एंड द थर्ड स्टेज जो है इसमें क्या है कि फाइनली इन केस ऑफ ह्यूमन the placenta is deciduous. So in that what happens, the placenta is just simply being discharged. It takes about 35 to 40 मिनट्स लगता है आफ्टर डिलीवरी, जिसमें कि वो डिस्चार्ज हो जाता है. लेकिन फीमेल के यूट्रस को अपने प्रॉपर पोजीशन में आने में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लग जाता है. क्लियर? सो इन दैट वे द पार्चुरेशन इज बीइंग कंप्लीटेड. क्लियर? सो थैंक यू. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. ओके, सो थैंक्स.